So today topic is randomized search strategy. I had made three video. In first video, I have discussed the what is HMM, introduction of HMM, and in second video, uh, we have discussed types of the HMM problems and how we can solve these three problems of the HMM and how we can make our model equivalent to HMM model and fit in which problems. And I also discussed that these three problems cannot be solved directly, but these three problems can be solved using some method. For example, I have already discussed that if this is the first problem, so we can solve using the some forward backward algorithm. If problem number two, then we use the Batterby algorithms, and problem number three, complex algorithms can be used for the solving these types of the problem. Now, today we will discuss the randomized search strategy. So, what I already discussed in about our previous lecture, that what is the difference between algorithms and randomized algorithms. I already discussed. So, in the randomized algorithms, we come there is the random search algorithm are the popular because they can provide a relatively good solution quickly and easily. तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, एल्गोरिथम्स का मतलब ही है यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. That problem may be your practical problems, at your daily life problems, academic problems, or any type of the problem which will be in word exist. So how we can find the solution of that problem, that will be read in algorithm. So using random algorithm, we can solve that problem very quickly, मतलब बहुत जल्दी और बहुत आसान से. Random search method have a potential to solve large scale problem effectively, efficiently in a way that is not possible for deterministic algorithms. So it is known that deterministic method for global optimization is anti-hard. There is evidence that stochastic algorithm can be executed in a polynomial time on the average. So there is the here numbers of randomized algorithm exist. In this, some uh, some algorithms which will be discussed in this problems in this lecture, that are hill climbing, metro plus search technique, simulated and search technique, genetic algorithms, go with the winner algorithm, and colony optimization algorithm, and also many more. So in the first algorithms, we go to the hill climbing search. So this is a hill climbing search. In this, what we are doing in this basically, if the next stage is goal state, search stop. Otherwise, the search continues until it finds the goal state or reaches a peak where no neighbors has a higher value. This is the main funda of this hill climbing search technique. Means अगर नए स्टेट, अगर आपका जिस गोल को आप फाइंड करना चाह रहे हो, अगर उस गोल पे नए स्टेट में पहुंचते हो तब तो हम फिनिश करेंगे नहीं. until unless we will continue, until unless we will find the final solution. Final solution means final goal, and
that goal must be, in case of the optimization maxima, means a global maxima, not a local maxima, means this will be have highest value of all the local maxima value. So hill climbing does not look ahead behind the immediate neighbors. The current state is therefore may stop at local maxima or ridges or plateau. General approach of hill climbing search is this. So as is any route, we assume as एक route जिसको assume कर लिया और continue, it will be continue until unless as की value 5 नहीं होती है, begin करते हैं सबसे एक पहले एक कोई भी वैल्यू पॉपअप करते हैं और उसकी वैल्यू पी में हम चेक करते हैं, पी में स्टोर करते हैं, पी एक वेरिएबल है उसको स्टोर करते हैं और पी को हम चेक करते हैं कि दिस विल बी द गोल और फाइनल स्टेट. If it is okay, then stop. If it is not okay, then we take D1. That will be the descendant of P, and descendant P will depend upon for each element D1 in descending order of FD to begin, or if not visited D1, then push again, हम D1 को उसके अंदर पुश कर देंगे, then और end करेंगे. This will be continue जब तक कि S जो हमारा रूट है, जो कि इसके अंदर हमने लेकर के चले हैं और ये हमारा सारे के सारे जितने भी लोकल मैक्सिमा को विजिट नहीं कर लेता है, until विजिट करता है. तो इस एल्गोरिथम की ब्यूटी ये है कि ये एल्गोरिथम्स जब हम वैल्यू इसको इवेलुएट करते हैं, एस के अंदर हम एक वैल्यू रूट को लेके चलते हैं और पी जो है फर्स्ट हमारा जो वैल्यू है पुश पॉप करने से जो भी हमारी वैल्यू आती है पॉप फंक्शन, जैसे कि आपने स्टैक में वैल्यू लिया है, आपको जो भी पी वैल्यू मिलती है इसको गोल से चेक करते हैं, गोल अगर है तो ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं D1 निकाल लेते हैं और D1 क्या है डिसेंडेंट, उस वैल्यू का डिसेंडेंट वैल्यू होगा और ये जो है फॉर ईच एलिमेंट D1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द FD, इस जो FD फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इसके करेस्पॉन्डिंग होगा और until unless ये will be reached to the not visited when push as into D1 end with end hill climbing. तो इसमें लोकल मैक्सिमा जो है, a local maxima is a peak that is higher than each of the neighbor state. Hill climbing that reaches the vicinity of local maxima and move upward toward the peak, but then can stuck there itself, finding now where to go. Ridges क्या है? It is a sequence of local maxima which poses difficulty for choosing the best maximum for this technique. Plateau क्या है? Plateau is an area of such space where the evaluation function is a flat. A hill climbing search might be unable to find its way of the plateau. तो तीन वैल्यू को हम चेक करते हैं, लोकल मैक्सिमा, रिजेस एंड प्लेटो. सो दीज आर द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम. नाउ metropolis algorithm. Metropolis algorithms basically you have seen many times this is a algorithm which you can check कि इसको कैसे डिराइव किया गया और हमारे इसमें कैसे यूज करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर एग्जांपल द मेट्रोप्लस एल्गोरिथम is based on the notion of complete balance and describe equilibrium system whose configuration has probability proportional to Boltzmann factor. The Boltzmann factor होता है e की पावर माइनस e अपॉन t, that is delta e अपॉन t. तो
फैक्टर क्या है, e की पावर माइनस डेल्टा ई अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी that a system will be found in a particular configuration at energy E where the temperature of the environment is a T। तो आप अगर इस एल्गोरिथम को देखेंगे और सोचेंगे कि इसमें टेम्परेचर क्या है, बोल्टजमैन फैक्टर तो ठीक है, लेकिन इसमें टेम्परेचर की वैल्यू कैसे करेंगे, टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। एक कंपैरेटिव प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे पी ए, पी इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। तो मान लो दो स्टेट है, दो पॉइंट है, एक की आपकी प्रोबेबिलिटी पी ए है और दूसरी की प्रोबेबिलिटी पी बी है। तो हमने क्या निकाला वहां से, पी ए अपॉन पी बी is used to decide for the configuration attempt according to the following algorithms। पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग विद कॉन्फ़िगरेशन ए, एक मान लो आपकी वैल्यू मिली ए, इसकी एनर्जी को मानेंगे ई ए विद स्मॉल चेंजेस विद द ए ऑब्टेन ए न्यू कॉन्फ़िगरेशन बी। अगर आपने अब कुछ चेंज किया तो आपको बी मिलेगा। आप कंप्यूट करेंगे ई बी with the configuration of B, then आपको क्या दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए था उस पे आपने निकाला ई ए और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ चेंज किया तो आपको पॉइंट मिला बी, उसके करस्पॉन्डिंग आपने निकाला ई बी। अब आपने कंप्यूट किया कि ई बी ई ए और ई बी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इफ ई बी इज लेस देन ई ए, तो अगर ई ए ई बी छोटा है एक्सेप्ट द न्यू कॉन्फ़िगरेशन, तो हम क्या करेंगे, न्यू कॉन्फ़िगरेशन को विद द लोअर एनर्जी वाले को हम एक्सेप्ट करेंगे। और अगर ई बी ग्रेटर देन ये है तो हम एक्सेप्ट करेंगे न्यू कॉन्फ़िगरेशन विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। तो हमें क्योंकि ई की पावर थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा, माइनस डेल्टा ई अपॉन टी है, तो माइनस डेल्टा ई अपॉन को अगर इसको पॉजिटिव में लिखेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन ई की पावर डेल्टा ई अपॉन टी। तो पी की वैल्यू जो पी ए अपॉन पी बी है, वो जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें रिवर्स डायरेक्शन, माइनस होने के कारण रिवर्स डायरेक्शन पर निकल रहे हैं। अगर ई बी ई एज स्मॉलर है तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर ई बी ग्रेटर देन है तो हम प्रीवियस प्रोबेबिलिटी जो है उसी को मान के चलेंगे। तो इस तरह से इस एल्गोरिथम्स को हम इसी के सिमुलेटेड एल्गोरिथम्स में जब हम वो करेंगे, यूज करेंगे, तो इसको आसानी से हम लेकर के चलते हैं। तो इस तरह से ये जो एल्गोरिथम है मेट्रो प्लस, इसमें जब आप क्या करते हैं कि मान लो आपने कोई डेटा लिया टाइम टी, तो अगर टाइम टी पे आपने लिया और उसको आपने माना कि दिस विल बी डेटा एट ए, अगर आपने टाइम टी पे कोई वैल्यू निकाला टी पे और उसको पॉइंट माना ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी पी ए ई ए। दूसरा आपने निकाला एट टी प्लस 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा बी, इसको बोलेंगे ई बी। अब इसमें क्या करना है कि इफ अगर ई बी और आप प्रोबेबिलिटी आप पहले निकाल चुके हैं, P इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। जो E की वैल्यू है वो क्या है, माइनस डेल्टा ई अपॉन टी। टी क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पे T की वैल्यू को टाइम दे दिया। अगर टाइम को 1 चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हमें हर बार डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी हमको मिलता रहेगा, क्योंकि चेंज इन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ए अपॉन टी बी चेंज होती रहेगी, और डेल्टा टी और टी इक्वल टू टी टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस आई तक चेंज होती रहेगी। हमें सिर्फ वैल्यू क्या चेक करनी है, इफ ई बी इज लेस देन ये है तो हमें नया कॉन्फ़िगरेशन लेना है, और अगर ई बी इज ग्रेटर देन ए बी है तो पुरानी प्रोबेबिलिटी लेकर के हम काम करेंगे ड्यू टू द माइनस फैक्टर ऑफ ई की पावर, नहीं तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। So this is a beauty of Metro Plus algorithm. Easily you can take the data and you can solve the problem. Next algorithm is simulated and linked search technique. In this search technique,
Simulated tunneling is motivated by the analogy of the handling in solid. The idea of simulated handling comes from the paper published in 1953 by Metropolis in 1953. तो मेट्रोप्लस जो आपको एल्गोरिथम बताई है, उन्हीं के आइडिया पे जब मेट्रोप्लस ने एक सिमुलेटेड हैंडलिंग का 1953 में एक पेपर जो है पब्लिश किया, उसके आइडिया पे ये एल्गोरिथम बेस्ड है, और वो भी बेस्ड है आपका मेट्रोप्लस एल्गोरिथम में। ए सॉलिड इज हीटेड पास्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड देन कूल्ड। अगर किसी भी एक सॉलिड को हम हीट करते हैं, बहुत तेज मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करके ले जाते हैं और उसको कूल करते हैं, तो कूल करने के हमारे पास कई मेथड हैं। एक तो हमने एकदम तुरंत पानी डाला या कूल कर दिया बहुत ज्यादा, मान लो आपने 100 डिग्री के ऊपर आपने मान लो 500 डिग्री तक आपने हीटेड किया और इसको -0 से कूल कर दिया। दूसरा हम धीरे धीरे कूल कर रहे हैं, 5 डिग्री कूल कर रहे हैं, 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 5 डिग्री, 5 डिग्री। देन वी चेक what will be the crystal we will get after the once time cooling or cooling very small form, मतलब very slow temperatures. तो a solid is heated in past melting point and then cooled. The structure property of solid depend upon the rate of cooling. If the liquid is cooled slow, then large एकदम एक साथ फ्लो डाउन करो तो लार्ज क्रिस्टल में भी फॉल, बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे। मान लो आपने आयरन को बहुत ज्यादा हीटेड मेल्टिंग पॉइंट तक किया और उसको आपने धीरे धीरे कूल किया, तो जो लिक्विड के जो क्रिस्टल बनेंगे दैट विल बी लार्ज क्रिस्टल बनेंगे। और अगर आपने एक साथ कूल कर दिया तो क्या करेंगे, इफ लिक्विड इज कूल्ड क्विकली द क्रिस्टल विल ऑपरेट इम्परफेक्शन और वेरी स्मॉल। तो जो एक साथ कूल करने पे क्या मिलेगा कि जो लिक्विड जो क्रिस्टल बनेंगे दैट क्रिस्टल साइज स्मॉल होंगे और उनमें कोई भी आपस में तालमेल नहीं होगा, कोई बहुत छोटा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा। So this will be the property of this simulated handling. It is the paper published in 1953 by the Metropolis, and the basis of this algorithm will be generated. And इसमें क्या है कि फार्मूला वही लगेगा, P is equal directly proportional to e की पावर minus delta E upon T, and in this वहाँ पे तो हम सिर्फ इस वैल्यू मेट्रोप्लस में सिर्फ हम कंपेयर करेंगे कि अगर EB लेस देन EA है तो भी एक्सेप्ट ये, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस हंड्रेड। इसमें T का कोई रोल नहीं होगा कि टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, दैट इज नॉट। यहाँ पे सिमुलेटेड हैंडलिंग में हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है, नंबर्स ऑफ वैल्यू भी है टेकन। मान लो एट टाइम T पे हमने एक डेल्टा E अपॉन T निकाला, P निकाली, P इक्वल टू PV अपॉन PA, मतलब डेल्टा E अपॉन T निकाला, और उसके बाद हमने T+1 पे वैल्यू निकाला, फिर T+2 पे निकाला, फिर T+3 पे निकाला, फिर T+4 पे निकाला, तो वी विल गेट ऐसे भी निकाल सकते हैं। या हमने मान लो वैल्यू को T+5, T+10, T+5, T+10, T+15, T+20 ऐसे निकाल सकते हैं। या हमने T पे निकाला, फिर T+10, T+20, T+30, T+40, T+50, इस तरह से वैल्यू पे हमने निकाला और वो चेक किया कि जो E की वैल्यू आ रही, जो प्रोबेबिलिटी आ रही, वो कैसे चेंज हो रही है, और उसको हमने मेजर किया। तो यहाँ पे इसी फंडामेंटल को यूज करके हम काम करेंगे कि सॉलिड इज हीटेड फास्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट कूल्ड, if structure of property solid depend upon the rate of cooling, तो दो है। if the liquid is cooled slow down, तो large crystal will be formed. However, if liquid is cooled quickly, the crystal will contain imperfection and will go to the very small.
At each step of the simulated handling algorithm, replace the current solution by the random nearby solution chosen with the probability that depend upon the difference of the corresponding function value of the global parameter, that is say T equivalent to temperature, that is gradually decreasing during the process. This is the dependency of function value is such that a current solution changes almost randomly when T is large but increasingly downhill as goes to the zero. तो ये जो है वैल्यूज को इस तरह से लेगा। अब देखिए इसमें ड्यूटी ऑफ दिस एल्गोरिथम क्या है, फंक्शन सिमुलेटेड टनलिंग प्रॉब्लम कॉमा शेड्यूल रिटर्न ए सॉल्यूशन स्टेट इनपुट प्रॉब्लम जो है एक प्रॉब्लम हमने ली, शेड्यूल ए मैपिंग फ्रॉम टाइम टू टेम्परेचर लोकल वेरिएबल करंट ए नोड, नेक्स्ट ए नोड हमने ले लिया, टी एज ए टेम्परेचर, करंट मेक नोड पे इनिशियल स्टेट प्रॉब्लम फॉर आई इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू 1 to t, t is equal to schedule time if t equal to 0, then current next random selected value by delta e equal to value of next minus value of current, delta e निकला है, delta e greater than 0 तो we can go to the next, और else अगर delta e की value less than 0 greater than 0 नहीं है तो हम current next only the probability of acceptation delta e upon minus t की वैल्यू देंगे। तो इस तरह से इस सिमुलेटेड टनलिंग एल्गोरिथम्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे कि इनिशियल 0 से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद एक रैंडम वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, कोई डेल्टा ई निकालेंगे, डेल्टा ई की नेक्स्ट माइनस करंट वैल्यू में से जो वैल्यू आएगी उसको चेक करेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो करंट को ही हम नेक्स्ट लेंगे, और अगर डेल्टा ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम करंट वैल्यू जो है नेक्स्ट विद द जो प्रोबेबिलिटी है डेल्टा माइनस डेल्टा ई अपॉन टी उसको वैल्यू को ले लेंगे। तो हर बार इसको हम चेक करते रहेंगे और इस वैल्यू को कंप्यूट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी एल्गोरिथम है वो है जेनेटिक एल्गोरिथम। सर जेनेटिक एल्गोरिथम is a search algorithm based on the mechanism of the natural selection process, biological evaluation. The basic concept is that it is the strong one tend to adapt the survive while the weak ones tend to die out. तो जो जेनेटिक एल्गोरिथम का जो फिनोमेना है उस बेसिस ऑफ दैट फिनोमेना की इज ए सर्च एल्गोरिथम है और ये बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस पे बेस्ड है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। द बेसिक कांसेप्ट इज दैट स्ट्रॉन्ग वंस टेंड टू अडॉप्ट द सर्वाइव व्हाइल द वीक वंस टेंड टू डाई आउट। तो हेंस optimization is based on the evaluation of the survival to the fittest concept based है। तो based on the fitness value the genetic algorithm select candidate solution and produce new population by combine through crossover and mutation। तो देर हम क्या करते हैं, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट वैल्यू पे हम वैल्यू इसको अप्लाई करते हैं और सबसे पहले हम फिटनेस वैल्यू एक फंक्शन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेटा, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, वो हम फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिथम में दो फंक्शन होते हैं, एक क्रॉसओवर होता है, एक म्यूटेशन होता है। After crossover and mutation, we again calculate the fitness value. If fitness value is getting the maximum, then current value, then we adapt the next. Or we will अगर maximum नहीं है, उससे वैल्यू बड़ी नहीं है, तो हम प्रीवियस की वैल्यू को लेकर के चलेंगे जो बड़ी होगी। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। तो हम we are moving on the maximum and we will get the global maximum. So survival is the fittest यहाँ पे, this is based on the number of experiment। So इसमें जो है इस फंडामेंटल को लेकर के हम इस एल्गोरिथम को बनाते हैं
और इसको धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं और हमें सोल्यूशन इसका बहुत अच्छा मिलता है। तो एल्गोरिथम्स में क्या करेंगे, बिगिन मतलब टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल पॉपुलेशन हमने कोई टी आप टी ले ली, जितनी भी आपके पास फर्स्ट पॉपुलेशन उसको हमने ले लिया, इवेलुएट कर लिया पॉपुलेशन फंक्शन ई टी, हमने एक फंक्शन करके और इसकी वैल्यू ई टी निकाल ली, एक फिटनेस वैल्यू निकाल ली कि ये है। while not terminate condition do begin t is equal to 2 plus 1 पे सेलेक्ट हमने क्या किया कि पॉपुलेशन पीटी फ्रॉम पीटी माइनस 1 से एक वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली। आफ्टर हमने पीटी को चेंज किया बाय जीए ऑपरेटर, जेनेटिक एल्गोरिथम ऑपरेटर से हमने चेंज कर दिया और इवेलुएट कर लिया पीटी। तो जब इवेलुएट किया पीटी तो पहले हमने क्या लिया, नॉट टर्मिनेशन कंडीशन पे बिगेन हमने किया विद टी इक्वल टू टी प्लस 1 पे सेलेक्ट किया पीटी फ्रॉम पीटी माइनस 1, आल्टर किया पीटी बाय ए जेनेटिक एल्गोरिथम ऑपरेटर और इवेलुएट किया पीटी। ठीक है, तो एंड जो है इनको जब एंड मिला तो वो जो है इस वैल्यू के पास हमको फाइनल मिल गया और बिगेन और एंड में जेनेटिक एल्गोरिथम्स हमको करते चले जाएंगे। तो हमें इसमें पहले हमने एक इनिशियल पॉपुलेशन लिया, फंक्शन वैल्यू निकाली और ये कंटिन्यू रहेगा। टी इक्वल टू टी प्लस 1 पे हमने क्या किया, एक सेलेक्ट किया, दूसरा हमने क्रॉस ओवर या जो भी वैल्यू निकाले तो जो पॉपुलेशन है पीटी और पीटी माइनस 1 पे हमने क्रॉस ओवर म्यूटेशन किया, अगेन हमने चेंज किया सब पीटी और जीए ऑपरेटर्स में आपके क्रॉस ओवर म्यूटेशन किया, अगेन फिर हमने पीटी निकाल लिया और दोनों में कंपेयर किया कि कौन वैल्यू बढ़ी है। अगर पहले वाली बढ़ी है तो उसको लेंगे, नहीं तो दूसरी जो हमने प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस वैल्यू में बढ़ी है उसको लेकर के नेक्स्ट टी इक्वल टू टी प्लस 1 पे हम कंटिन्यू रहेंगे और दिस विल बी कंटिन्यू अंटिल अनलेस वी गेट द ए वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर हम टी की वैल्यू एक थ्रेशोल्ड वैल्यू मान लेंगे तो नंबर्स ऑफ टाइम इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जेनेटिक एल्गोरिथम को ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये लूप है। एक और एल्गोरिथम्स है that is very important and very good algorithm go with the winner algorithms। तो बेसिकली इसमें दो एल्गोरिथम्स है लेकिन एक के ही एल्गोरिथम्स में दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। तो एल्गोरिथम 0 और 1, 0 का मतलब स्टार्ट विथ रूट, रिपीटेडली चूज ए चाइल्ड एट रैंडम अंटिल रीचिंग ए लीफ। तो एक इसमें क्या है कि रूट से स्टार्ट करेंगे और एक चूज करेंगे एक चाइल्ड, मान लो एक कोई नोड है उसके 5 चाइल्ड हैं, वो दिस इज जनरेट बाइनरी ट्री, इट विल बी द एनी टाइप ऑफ ट्री, इट कंटेन्स नंबर ऑफ अ चाइल्ड and the child have some value, either some descending value or ascending value, that will depend upon the problem and case। अगर हमने तो repeatedly choose a child and random until reaching a leaf, तो हम क्या करेंगे, हमने एक रूट लिया, स्टार्ट किया रूट से और उसमें से कोई भी चाइल्ड लिया, फिर उससे कोई चाइल्ड लिया और लीफ तक हम पहुंच गए। तो इस दिस केस we will do this algorithm 0, but algorithm 1 is different। 1 में क्या है कि हम repeatedly करते हैं लेकिन using some other process। वो with winner repeat the following procedure starting at stage 0 with b particle at the root। मान लो इसमें हमने ये मान के चला कि एक रूट है, इसके b पार्टिकल है b1 b2 b3 b ऑफ n पार्टिकल। तो एट स्टेज आई, मान लो आपका फर्स्ट स्टेज पे है, आई की वैल्यू 1 है, ईच ऑफ द बी पार्टिकल हैव सेम वर्टेक्स एट द डेप्थ आई, आई एथ पे है। तो हमने क्या किया, इफ ऑल द पार्टिकल एट द सेम लेवल देन स्टॉप। अगर सभी सेम लेवल पे तो स्टॉप हो जाएंगे, अगर नहीं है सब पार्टिकल तो उसमें से हम क्या करेंगे, एम पार्टिकल लेंगे जो कि J1 अप टू JM और नॉन लेवल्स पे है, जो कि नॉन लेवल्स में है, जो लेवल्स में नहीं है। स्प्रेड द रिमेनिंग V माइनस N
तो आई एम टोटल आपके बी पार्टिकल है, जिसमें जे पार्टिकल लीप पे नहीं है, लेवल पे नहीं है, बाकी बी माइनस जे जो पार्टिकल है वो लीप पे है। तो हमने क्या किया कि स्प्रेड द रिमेनिंग बी माइनस एम पार्टिकल evenly among the each position of each of the which gate. Assign an extra particle move from its current vertex to child choosing the random. तो हमने क्या किया कि मान लो आपके पास किसी रूट पे एक रूट है, रूट पे आपके 10 पार्टिकल्स हैं, 10 चाइल्ड हैं, ईच चाइल्ड में उस 10 को हमने वैल्यू बी माना, उसमें से 4 पार्टिकल ऐसे हैं जो कि लेवल, 6 पार्टिकल ऐसे हैं जो कि लेवल पे है और 4 पार्टिकल ऐसे हैं नॉन लेवल पे। तो जो 4 पार्टिकल लेवल पे नहीं है उन 4 पार्टिकल्स को जे आर नॉट लेवल। तो ये जो 4 पार्टिकल लेवल से नहीं है तो बी माइनस एन जो पार्टिकल्स हैं, मतलब 6 जो आए 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, इन 6 वैल्यू को उसके ऊपर इवनली हमने जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया देन वी चेक द वैल्यू कि ये आपके लेवल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इसमें से फिर हम उसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस गेम। तो इसमें यही कहा है कि पहले हमने बी पार्टिकल्स लिए एट डेप्थ आई, इफ ऑल द पार्टिकल इन द सेम लेवल स्टाफ, अगर नहीं है तो एम पार्टिकल जो है नॉन लेवल लीव्स है, ठीक है, और एम जो नॉन लीव्स है उसमें हमने क्या किया, बी माइनस एम पार्टिकल इवनली अमंग द पोजीशन each of which gets assigned an extra particle moving from its current vertex to the child root chosen as a random. If B minus M is not a multiple of M, then pick a random subset of M position, each of which get an assigned an extra particle. So B minus M is not a multiple of M, then pick a random subset of the M position, each of which get an assigned an extra particle. Then let each of particle move from its current vertex to the child chosen at random. तो जो b minus m नॉट मल्टीपल ऑफ m, अगर इट मे बी पॉसिबल कि मान लो मल्टीपल ऑफ m हो और नॉट मल्टीपल ऑफ m, अगर नॉट मल्टीपल ऑफ m है तब तो इवनली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर b minus m मल्टीपल ऑफ m नहीं है तो पिक ए रैंडम, उसमें से एक सबसेट वैल्यू लेंगे b minus m में से, और जितने भी जे है उसके ऊपर रैंडमली हम असाइन कर देंगे। Then let each of the B particle move from its current vertex to the child chosen at random. तो इसको फाइनल उसमें पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ हमने आज एल्गोरिथम से डिस्कस करी है जो कि आपकी रैंडम एल्गोरिथम्स हैं, और इनको हम रैंडम एचएलएम के साथ जब यूज करते हैं फाइंडिंग द ग्लोबल मैक्सिमा, these algorithms are very helpful to get the global maxima as compared to the global minima, or finding the global minima as compared to the global minima, local minima. So for discussion of these on the, if you find any problems in these randomized algorithms, you can write the query for me. My address, email address is rnkatiyar@gmail.com, and on you can use me on the this level. So solving these problems, this is not a particular solution. Thank you.